Hello children, welcome to your English video class. Children, today we'll be continuing chapter 4 of your main course book. Children, I hope you have seen the previous videos of this chapter. I have started this chapter a few days back. As I told you, this is a chapter from your main course book. ये आपकी main course book का है. Chapter 4, it is a picture story, and I have explained you some part of this chapter. Let's revise what we have studied so far. Children, in this chapter there was an ant and a dove. That ant was searching for food. He was looking for food near a river bank, side of the river. And that ant found a big grain. The ant was very excited. It decided to take that grain to its home. The ant was very excited to find that big grain, and he decided that he will take that grain to his home. But just then what happened? A strong wind blew and it blew him into the river. Because the ant was searching for food near the river. वो river के पास ही वो खाना ढूंढ रहा था, और हवा जब बही तेज, जब strong wind हुआ तो वो कहाँ जाके गिर गया? In the river only. वो नदी में जाकर गिर गया. फिर क्या हुआ? अब कोई भी गिरेगा और बड़ी सी नदी में छोटा सा अगर इंसेक्ट, छोटा सा कीड़ा गिर जाता है, छोटा सा चींटा गिर जाता है तो क्या होगा? That insect, or for that matter anybody, would struggle to save his or her life. हम में से भी कोई गिरेगा तो हम अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे. तो एंट ने भी यही किया. He started struggling to save his life from drowning. वो डूबने से बचने के लिए उसने कोशिश करनी शुरू की, और साथ में वो चिल्लाने भी लगा, हेल्प समवन प्लीज़ हेल्प. होता है ना, बचाओ बचाओ हम चिल्लाते हैं अगर ऐसा कुछ होता है तो. So that ant also started crying for help. There was a tree nearby that tree, and a dove was sitting on that tree. That dove heard the voice of ant. The ant was shouting for help. So when the dove heard this, and when he found that the ant is in trouble, he decided to help. She decided to help him. She said to herself that ant is in trouble and I must help him. So what she did, she plucked off a leaf from that tree and dropped that leaf into the river near the ant. उसने ant के पास वो leaf गिरा दिया, and also told ant to climb on the leaf quickly. The ant, somehow he managed to crawl on the leaf, and then he safely reached the river bank. एकदम सुरक्षित वो river bank पे पहुंच गया. किनारे आने के बाद उसने सबसे पहले थैंक यू बोला डव को for saving his life. He said that he will be grateful forever. Forever मतलब होता है ज़िंदगी भर, हमेशा के लिए. तो he said that he would be grateful forever for saving his life. उसने थैंक यू किस तरह से बोला? उसने थैंक यू बोल के बोला कि थैंक यू फ्रेंड, आई विल फॉरएवर बी ग्रेटफुल फॉर यू फॉर सेविंग माई लाइफ. तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है और इसके लिए मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारा आभारी रहूँगा. फिर क्या हुआ? फिर कुछ हफ्ते बीत गए. अ फ्यू वीक्स लेटर, वंस that dove was resting on the tree. वो अपने ट्री पर रेस्ट कर रही थी. When a hunter saw her, hunter मैंने बताया था आपको, hunter कौन होता है? The person who kills birds or animals. So a hunter saw her. अभी hunter का तो काम ही है animals और birds को मारना. The hunter, when he saw that dove, he hid him behind a bush. वो एक झाड़ी के पीछे छुप गया ताकि डव उसको देखे ना, और वहाँ से उसने निशाना लिया. He aimed at the bird. निशाना एम का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, व्हेन यू पॉइंट योर गन और वेपन टुवर्ड्स समबडी, जिसको किल करना है, जिसको मारना, उसकी तरफ गन को पॉइंट करना.
ताकि जब शूट करें तो सीधा बुलेट उसको लगे। तो उसने एम किया बर्ड को, और मन ही मन वो क्या सोच रहा था, आहा दैट्स अ बिग नाइस बर्ड, दैट्स अ नाइस फैट बर्ड। मतलब उसको लगा कि हाँ क्या मज़ेदार उसको बर्ड मिल रहा है, और सोच के वो खुश हो रहा था। जब वो ये कर रहा था उसी समय पे एट द सेम टाइम द एंट सॉ द हंटर, सेम एंट जिसकी कि डव ने लाइफ बचाई थी, उस एंट ने उस हंटर को देख लिया। क्या करते देखा कि उसने गन पॉइंट किया है उस डव की तरफ, ठीक है। और अभी ये सोच ही रहा था कि मैं अभी बस गन को शूट करूँ, बुलेट अभी जाएगी और सीधा उस डव को लग जाएगी। इस एंट ने क्या सोचा कि माई फ्रेंड इज़ इन डेंजर, मेरी फ्रेंड तो डेंजर में है, उसकी जान को खतरा है और टाइम बहुत कम है ना। गोली चलने में कितना टाइम लगता है, बस फट से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में चल जाएगा। तो उसको एक आइडिया आया। उसने क्या किया, ही क्विकली क्रॉल्ड इनसाइड द हंटर्स बूट। क्विकली मतलब जल्दी से, तुरंत। क्रॉल मतलब मैंने आपको बताया था, जब हम अपने सारे लिम्स यूज़ करके मूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉलिंग, मतलब हाथ पैर सब यूज़ करते हुए और मूव करना। तो वो एंट क्रॉल करके जल्दी से उस हंटर के बूट में घुस गया, उसके जो बड़े बड़े जो शूज़ थे, जूते थे, उनमें वो घुस गया और उसने उस हंटर के एंकल पे स्टिंग किया, डंक मारा। जो एंट होते हैं उसके दांत नहीं होते कि वो काटेगा, उनके स्टिंग्स होते हैं। जैसे बी के स्टिंग होता है, वास्प का स्टिंग होता है, वैसे ही एंट का भी स्टिंग होता है। तो उसने जोर से वहाँ पे उसको स्टिंग किया। अब जैसे ही अगर हमें भी कोई अगर चींटा से काट लेता तो हम क्या करते हैं, ऐसे हो जाते हैं और बहुत तेज़ दर्द होता है, ऐसे ऐसे खुजलाते हैं, मतलब हम जो भी कर रहे थे हमारी बॉडी एक बार शेक हो जाती है। तो सेम हैपन्ड विद द हंटर। अभी क्या हुआ, अब हम इसको यहाँ से अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। नाउ विल मूव फॉरवर्ड। द हंटर lost his balance the hunter lost his balance and missed the aim. और क्या हुआ, missed the aim. The dove heard the noise. The dove heard the noise and quickly flew away. फुल स्टॉप। चलिए इसको अब पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। The hunter lost his balance and missed the aim. Missed the aim. The dove heard the noise and quickly flew away. अब क्या हुआ, जब उसको एंट ने स्टिंग किया तो उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने गन लिया था, उसने एम किया हुआ था एंट डव की तरफ। जैसे ही उसको एंट ने काटा तो उसका क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, शेक हो गया। तो वो तो बिल्कुल रेडी था शूट करने के लिए, तो शूट तो कर दिया उसने, लेकिन उसका एम जो था वो मिस हो गया। मतलब उसने डव की तरफ एम किया था लेकिन वो शूट कहीं और हो गया। डव की जगह ना होकर गोली तो चली, बुलेट तो निकला, गन तो शूट हुआ, लेकिन बुलेट मिस हो गया, मतलब वो डव को नहीं लगा, हाथ हिल गया। अगर हमने एक तरफ पॉइंट किया और ऐसे हो जाए तो
डव को नहीं लगे किसी और को लगेगा, या जिसकी तरफ हमने एम किया उसको नहीं लगेगा। तो दिस थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, पैर ऐसे हो गया होगा, उसने काटा होगा तो ऐसे हो गया होगा, और उसका हाथ शेक हो गया, बैलेंस बिगड़ गया और ही मिस्ड द एम। मतलब ही फायर्ड द बुलेट बट द बुलेट डिड नॉट हिट द डव। गोली की आवाज़ आई, जब गन चलता है तो साउंड होता है ना, तो क्या हुआ, द डव हर्ड द नॉइज, डव ने तो शोर सुन लिया, ठाएं से आवाज़ हुई होगी, है ना। तो जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, क्विकली फ्ल्यू अवे, आवाज़ सुनते ही वो डव तुरंत उड़ गया वहाँ से, द डव फ्ल्यू अवे। ओके, इतना समझ में आया कि हंटर को जैसे ही एंट ने स्टिंग किया, हंटर का बैलेंस बिगड़ा, उसका एम मिस हो गया, वो डव की तरह एम कर रहा था लेकिन उसका कहाँ लग गया, उसको कहाँ लगा, कि कहीं और लगा, मतलब डव को नहीं लगा। और डव ने लेकिन बुलेट की जब आवाज़ सुनी तो वो तुरंत उड़ गई। नाउ लेट्स सी, अब उसने क्या बोला, यहाँ पर पिक्चर में किस तरह से एक्सप्लेन्ड है, ऐसा यहाँ पे सीन है। अब क्या है, वो जो गन की आवाज़ क्या हुई, बूम, पलाया बूम ब्लास्ट। अब ये बूम ब्लास्ट क्या है, मतलब गोले की आवाज़, बूम ऐसा आवाज़ आता है ना जैसे, वो दैट इज़ बूम ब्लास्ट। आउच यू लिटिल बीस्ट। जैसे ही उसने स्टिंग किया उस हंटर को ना, आउच ऐसे बोलते हैं ना, कुछ लग जाता है तो उसने भी बोला आउच यू लिटिल बीस्ट। लिटिल बीस्ट मतलब छोटे जानवर, बीस्ट का मतलब होता है जानवर और लिटिल का मतलब है छोटा, तो उसने बोला यू लिटिल बीस्ट, मतलब उसने गुस्से से बोला। इंसेक्ट, वो चींटा तो छोटा सा था और वो इंसेक्ट है, छोटा है, तो उसने गुस्से में हंटर ने उसको बोला यू लिटिल बीस्ट, तुम छोटे से कीड़े। और उसको गुस्सा आया ना कि उसका निशाना चूक गया और बर्ड उड़ गया। तो उसने जब उसको काटा तो उसने उसके मुंह से निकला आउच यू लिटिल बीस्ट, और उसकी गोली चल गई, बूम ब्लास्ट ऐसा आवाज़ आया। तब तक में तो डव उड़ गई थी। आगे देखें, चलिए अब मैं इसको इरेज कर दूं तो आगे का लिखूंगी मैं। उसके बाद डव ने क्या बोला, डव ने बोला थैंक गॉड। ठीक है, थैंक गॉड माई लिटिल फ्रेंड, माई लिटिल फ्रेंड has saved me. ओके, अब डव को तो पता चल गया ये बात कि चींटे ने उसके पैर में काटा था, इसीलिए बैलेंस बिगड़ा और इसीलिए उसका निशाना चूक गया। तो डव ने पहले तो भगवान को थैंक यू बोला, थैंक गॉड, ठीक है। एंड माई लिटिल फ्रेंड सेव्ड मी, माई लिटिल फ्रेंड है सेव्ड मी, मतलब मेरे छोटे से दोस्त ने जो क्योंकि एंट तो छोटा ही होता है, तो उसने बोला कि माई लिटिल फ्रेंड सेव्ड मी, मेरे छोटे से दोस्त ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी जान चली जाती है ना, वो मर जाता ना। अगर निशाना नहीं चूकता उसका हंटर का, तो गोली किसको लगती, बुलेट किसको लगता, डव को, है ना। तो एंट ने अपने फ्रेंड की जान बचाई। क्यों बचाई जान, क्योंकि डव ने भी तो उसकी जान बचाई थी, है ना। डव ने बिना उसको जाने, जब वो एंट को जानती भी नहीं थी, तो उसने एंट की जान बचाई थी। तो एंट ने भी
उसकी हेल्प की। मतलब अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। वी शुड ऑलवेज़ बी रेडी टू हेल्प अदर्स। मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। मतलब गुड डीड इज़ ऑलवेज रिटर्न। हम अगर कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। ओके, अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे काम का बुरा नतीजा। मतलब अब उस दिन से क्या हुआ, फ्रॉम दैट डे ऑन, लेट मी राइट दिस, फ्रॉम दैट day on the ant and the dove became inseparable। इनसेपरेबल का मतलब होता है हमेशा जो साथ है, जिनको अलग ना किया जा सके। इनसेपरेबल फ्रेंड्स। उस दिन के बाद से वो एंट और वो डव वो क्या हो गए, पक्के दोस्त हो गए। इनसेपरेबल फ्रेंड मतलब जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता, जिनको हम अलग नहीं कर सकते, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इनसेपरेबल। दे आर इनसेपरेबल, दे बिकेम इनसेपरेबल फ्रेंड, और यू कैन से दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड। एक दूसरे की मदद की। पहले डव ने मदद की और फिर उसका, क्योंकि डव ने एक अच्छा काम किया था तो उसको उसके बदले में अच्छा काम मिला, है ना। जान बचाई तो उसकी भी जान बच गई। अगर डव ने एंट की लाइफ नहीं बचाई होती तो आपको क्या लगता है कि एंट ने बचाया होता? एंट भी शायद ध्यान नहीं देता या बचा भी सकता था, नेवर नो। लेकिन मेन हम ये मानेंगे ना कि एंट, क्योंकि डव ने बचाया था इसलिए एंट ने भी अपनी ड्यूटी समझी कि उसने मेरी जान बचाई तो मेरी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसकी जान बचाऊं, है ना। तो हम कहते हैं ना कि इफ़ वी डू गुड वर्क द गुड वर्क विल कम बैक टू अस। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हमें बदले में अच्छाई ही मिलती है, हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। अगर आप किसी के साथ भी अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो ही पर्सन करे, कोई और भी आपको कर सकता है। यहाँ तो सेम हुआ कि डव ने एंट के साथ किया तो एंट ने भी डव के साथ किया, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं या आप, हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वही पर्सन रिटर्न में हमारे साथ अच्छा करे, कोई दूसरा पर्सन भी हमारे साथ अच्छा कर सकता है। तो when we do good to others, the good comes to us, the good things it comes to us। हमारे अच्छे जो काम हैं वो एक्नॉलेज होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान देखते हैं कि कौन अच्छे काम कर रहा है। तो अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। भले ही वो पर्सन ना करे, कोई और करेगा, लेकिन होगा हमारे साथ भी अच्छा ही। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जितना हो सके दूसरों की हमें हेल्प करनी चाहिए। यू नेवर नो, कभी हम भी ऐसी परेशानी में आएंगे तो कोई हमारे भी हेल्प के लिए ज़रूर आएगा, क्योंकि हम हेल्प करते हैं दूसरों की। हमारे बिहेवियर में आएगा, जब हेल्पिंग हो जाएगा, हमारा नेचर हेल्पिंग हो जाएगा, तो हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी किसी न किसी की हेल्प ज़रूर मिलेगी। दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा ये जो चैप्टर है ये तो हमारा ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके न्यू वर्ड्स लिख लेते हैं पहले। ठीक है, न्यू वर्ड्स लिखेंगे और उसके बाद वर्ड मीनिंग भी करेंगे। इसको मैं इरेज कर दूँ।
एज आई ऑलवेज टेल यू कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट क्यों होते हैं वर्ड्स, क्योंकि आप फेमिलियर नहीं हो, आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होता है या फर्स्ट टाइम देखा होता है कुछ वर्ड्स को, इसीलिए वो डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो हम उसको न्यू वर्ड्स कहेंगे। और एक बार आप उन वर्ड्स से फेमिलियर हो जाओगे, आप जान जाओगे, तो फिर वो वर्ड डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं। तो अभी ये न्यू वर्ड्स हैं, और जब आप इसे लर्न कर लोगे तो ये डिफ़िकल्ट भी नहीं रहेंगे आपके लिए। तो पहले तो हम आ जाते हैं, फर्स्ट वर्ड जो आपने सीखा था वो था बैंक, है ना। मैंने आपको बताया था ना, बैंक क्या होता है, साइड्स ऑफ रिवर होता है, ठीक है। देन द वर्ड वाज ग्रेन, ग्रेन अनाज का जो दाना होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेन। देन देयर इज वर्ड कॉल्ड विंड, तेज हवा, जब फोर्स के साथ हवा बहती है तो उसे हम कहते हैं विंड। देन देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड ब्लू, ब्लू मतलब फूंक मारना वाला, जो बताया था ना, हवा कोई चीज़ जब उड़ा देती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करा देती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था ड्यूरिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, ओके। देन वर्ड इज़ स्ट्रगल्ड, STRUGGLED, struggled. Then word is drowning, DROWNING. Struggle is that is स्ट्रगल्ड भी मैंने आपको बताया था। स्ट्रगल्ड क्या होता है, ट्राइंग वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करना। ड्राउनिंग मैंने बताया था, ड्राउनिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो ये जो वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, कोई भी वाटर बॉडी से, चाहे रिवर है, पॉन्ड है, ओशन है, सी है, उससे जुड़ा है। व्हेन समबडी इज़ ड्राउनिंग, इसका मतलब है कि वो उस वाटर बॉडी के बॉटम में सिंक हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ड्राउनिंग, सिंक कर जाना बॉटम में, उसी को कहते हैं ड्राउनिंग। Then we have trouble, word है हमारा trouble, TROUBLE, difficulty, okay, trouble. Then we have another word called plugged off, PLUCKED, plugged, OFF, off, plugged off, तोड़ना, किसी delicate soft चीज़ को ब्रेक कर, मतलब तोड़ना, कहीं से तोड़ना। प्लांट, जैसे हम ये जनरली हम यूज़ करते हैं फ्लावर्स के लिए या लीव्स के लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड। देन वी हैव ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड। देन नेक्स्ट वी हैव हरी, HURRY, हरी मतलब बोलते हैं जल्दी जल्दी, फटाफट, फास्ट, दैट इज़ कॉल्ड हरी। देन वर्ड इज़ मैनेज्ड, मैनेज्ड, ओके, वर्ड इज़ मैनेज्ड, किसी तरह से किसी काम को कर पाना। देन द वर्ड इज़ क्रॉल, CRAWL, crawl, crawl. Next we have grateful, grateful, okay, word is grateful. Next is hunter, HUNTER, hunter. Then we have aimed, AIMED. These are the new words that you came across इस चैप्टर में, जो आपने देखे हैं। मैंने आपको while explaining the chapter I have explained you all these words, ये सारे मैं आपको explain कर चुकी हूँ, है ना। Then we have spotted, यहाँ लिख देते हैं SPOTTED, spotted. Then we have bullet. Number 17 is BULLET, bullet. Okay. Next we have
बुलेट के बाद है डेंजर, DANGER, danger. Then next we have stung, STUNG, stung. Then we have ankle, stung, then ankle. Then the word is beast, word is beast. ओके, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में आ गया, इसको मैं फिर से लिख देती हूँ. दिस वन ग्रेटफुल, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं. 13 GRATEFUL. आई होप दिस इज विजिबल नाउ. यस, ग्रेटफुल. या इसको और नीचे ही लिख देते हैं यहाँ पर. ग्रेटफुल हंटर. 13 is grateful. 14 15 16 में लिख देते हैं हंटर. ओके, नाउ इट इज ओके. ओके, बीस्ट. बीस्ट के बाद हमारा है बैलेंस, BALANCE, balance. Then we have inseparable, inseparable. So 23 words हैं, 23 new words. आपको मैंने दिखाया, हाँ हो गया. These are the new words that you came across in the chapter. इस चैप्टर में आपने इनको देखा. अब बचा हमारा वर्ड मीनिंग. तो लेट्स डू. आप इसको पहले कॉपी कर लीजिए सो दैट आई कैन गिव यू वर्ड मीनिंग. ये कर लीजिए तो मैं आपको वर्ड मीनिंग देती हूँ. ओके, चलिए. आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको फिर इरेज कर देती हूँ. ओके, पहले हम वो सारे वर्ड्स करेंगे जो आपके बुक में जिनके मीनिंग्स दिए हुए हैं. ठीक है. पहला वर्ड है रिवर बैंक. रिवर बैंक का मीनिंग क्या लिखा है? स्लोप्स ऑन द साइड ऑफ अ रिवर. स्लोप्स ऑन द साइड ऑफ अ रिवर, जिसे हिंदी में हम नदी का किनारा बोलते हैं. ओके, देखो नदी किनारे. देन सेकेंड वर्ड है आपका स्ट्रगल्ड. STRUGGLED, स्ट्रगल्ड. स्ट्रगल्ड का मतलब क्या होता है? ट्राइड वेरी हार्ड. ट्राइड वेरी हार्ड. नेक्स्ट वर्ड है ड्राउनिंग. DROWNING. ड्राउनिंग का क्या मतलब होता है? ड्राउनिंग का मतलब होता है sinking to the bottom of a river body. अभी रिवर बॉडी जो है ना, ये आपके लिए नया टर्म हो गया फिर से. रिवर बॉडी का मतलब होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वाटर बॉडी. सॉरी, नॉट रिवर बॉडी, वाटर बॉडी. वाटर बॉडी में क्या क्या आ गया? रिवर्स, पॉन्ड्स,
lakes, seas, oceans, ओके ये सारे रिवर बॉडीज़ का पार्ट हैं और वाटर बॉडीज़। इसमें वेल्स भी आ जाएंगे, कुएँ भी आ जाएंगे। रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, सीज, ओशंस, वेल्स, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज़ हैं। इनमें ही किसी के डूबने के या सिंक होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ अ वाटर बॉडी मतलब या तो रिवर में सिंक कर जाना, या पॉन्ड में, या लेक में, सी में, ओशन में, या फिर वेल में, कुएँ में। ठीक है, तो ये आपका बुक का है। अभी तो हमने 3 किया है, वी विल डू मोर। ये पहले हम बुक वाले करेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा है वो भी मैं आपको करवा दूँगी। जो आपकी बुक में जो आपके और एक्स्ट्रा जैसे प्लग्ड ऑफ है, ड्रॉप्ड है, देन एम्ड है, ये सारे वर्ड जिनके मीनिंग बुक में नहीं दिए हुए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी, पर वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे ऑफ करते हैं एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।